Hello friends. Today I will teach you the how to do the program of linked list. Remember that this program is for a single linked list. इस प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हर प्रोग्राम में करते हैं. उसके बाद में एक क्लास डिफाइन करेंगे. इस क्लास के अंदर हम लोग 3 मेंबर फंक्शन जो कि हमेशा रहते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले. इंसर्ट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन अ लिंक लिस्ट, डिलीट इज फॉर द डिलीटिंग अ node from the linked list, and display is for the display the elements into the linked list. Along with that, you can see here 2 data member are present, that is integer and the linked list pointer. Here the name of the class is the linked list, and here the data member data type of these data member are also the linked list. That means, as we know that linked list has 2 parts, info and link. Info part contain the actual information that you want to store into the linked list, and link parts contain the pointer, that is the address of the another variable. That's why that pointer can be that pointer represent the another node itself. That's why here the data type of that pointer is the linked list, and the info is of type integer. And here one more variable we have taken, that is the LOC, that is the location, is used to store the location. So it is simple to define the class. Here the keyword class and the name of the class, that is linked list, and we have to define the data member and member function into that linked list. Along with that, we define here one another variable, CNT. Here the CNT variable we must declare as a global variable, because this variable is used throughout the program, and the global variable cannot change its value throughout the program. It carry the value, and this variable we need because we count here the how many nodes you have to insert into the linked list. उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्लास के बाद हमने कुछ क्लास के वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, स्टार्ट, नोड, temp1 एंड temp2. एक 4 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं. ये हर एक वेरिएबल क्या स्टोर करेगा? हर एक वेरिएबल रिप्रेजेंट द नोड. Means the start variable represent the node. That means start has a 2 parts, link parts and info part. Here node is also has a 2 parts, info and link. temp1 and temp2 has also the 2 parts, info and link. That's why we create this 4 variable is of the type linked list. हाँ, उसके बाद में हमारा फर्स्ट मेंबर फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन. यहाँ पे जो इंसर्ट होता है लिंक लिस्ट में, वी नो दैट इंसर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंसर्शन. फर्स्ट एट द फर्स्ट नोड, then at the mid of the linked list, and third one is the at the end of the linked list. So that's why here first of all we ask for the user for its location where he or she wants to enter the node into the linked list. Here is the message display onto the computer screen that at which location you want to insert the item, and that location which the user entered is stored into the variable LOC. Here this LOC variable is declared here in the class. Now after that, first we need to check what the user giving the input. If the user entered the number 1, then it will check here for if the location is greater than count. Suppose अभी यहाँ पे देखो काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 1 है. अगर काउंट की वैल्यू आपकी 1 है और लोकेशन की वैल्यू अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम को रन करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हम फर्स्ट नोड इंसर्ट करने वाले हैं. तो अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू डाली है, फर्स्ट इंसर्शन अगर डाला है, तो वो क्या चेक करेगा? इफ़ लोकेशन इज़ ग्रेटर देन काउंट.
and in this way it will display the invalid position and it will return from the program execution. After, if here अगर हमने यहाँ पे देखो, अगर ये कंडीशन ये हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम लोग ये इनवैलिड पोजीशन लोकेशन अगर काउंट से ज़्यादा है, मतलब अगर लोकेशन हमने 1 डाली है तो फिर 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नोड को इंसर्ट कर पाएंगे। जब भी आपको नोड को इंसर्ट करना है, वी नीड टू create a new node, and the code for creating the new node, you can see that here node is equal to new linked list. means यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इनिशियलाइज किया, एक मेमोरी अलोकेट की यूजिंग द न्यू वेरिएबल, और वो लिंक लिस्ट क्लास के लिए वो मेमोरी अलोकेट हुई। मतलब यहाँ पे एक नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके 2 पार्ट्स भी हो जाएंगे और उसके लिए मेमोरी भी अलोकेट हो जाएगी। उसके बाद में उस नोड में आपको कौन सी वैल्यू डालना है, इसके लिए हमने ये यूज़र से मैसेज पूछा कि एंटर द आइटम्स, और आइटम एंटर होने के बाद में वो वैल्यू हमने आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर की है। फिर हमारे पास जो नया नोड है उसका नाम है नोड, NOD नोड। फिर नोड के इन्फो पार्ट में हम लोग क्या डालेंगे, ऑब्वियसली हम आइटम की वैल्यू डालेंगे। फिर उसके बाद में लिंक पार्ट में क्या डालेंगे, नल डालेंगे फ़िलहाल के लिए। अभी तक हमने उसको कहीं पे भी इंसर्ट किया नहीं है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट नोड है, फर्स्ट लोकेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपका फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया है, जिसके इन्फो पार्ट में आपने आइटम भी डाल दिया है और उसके बाद में उसके लिंक पार्ट में आपने नल डाल दिया है। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको कॉमनली हर सिचुएशन के लिए करनी है। कौन कौन से सिचुएशन, अगर आपको नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो भी, अगर आपको नोड बीच में इंसर्ट करना है तो भी, अगर आपको नोड एंडिंग में इंसर्ट करना है तो भी, तब तो भी आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक न्यू नोड क्रिएट करना है, उसके बाद में एक आइटम लेना है, उसके इन्फो पार्ट में उस आइटम को असाइन करना है, उसके लिंक पार्ट में नल डालना है। इज इट क्लियर? या उसके बाद में आपको करना क्या है, तो आपको लोकेशन चेक करनी है कि यूज़र ने लोकेशन 1 डाली है क्या। अगर यूज़र ने लोकेशन 1 डाली है, इसका मतलब उसको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नोड इंसर्ट करना है। और अगर आपको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके लिंक लिस्ट में पहले से कोई नोड है क्या। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, अगर आपकी स्टार्ट की वैल्यू नल है, ओके, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, सिंपली उस स्टार्ट में आप ये जो आपने नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस असाइन कर दोगे। इसका मतलब अब स्टार्ट पॉइंटर में किसका एड्रेस है, जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस है। और अभी आपका नोड जो है, लिंक लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है और उसमें आपका फर्स्ट नोड इंसर्ट हो चुका है। और अगर नोड इंसर्ट हो चुका है तो आप काउंट की वैल्यू अभी बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस, मतलब अभी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और रिटर्न हो जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल नहीं है, दैट मीन्स अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी लिंक लिस्ट में अगर ऑलरेडी नोड है, अगर यहाँ पे आपके लिंक लिस्ट में नोड है ऑलरेडी पहले से, मतलब लिंक लिस्ट बिल्ड हुई है, और फिर भी आपको आपका नोड जो है वो फर्स्ट पोजीशन के यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो उस समय आपका ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और आपको उस समय करना क्या होगा, आपको जो आपने अभी जो नया नोड डाला है उसका जो लिंक पार्ट में है उसमें आपको स्टार्ट असाइन करना है, बिकॉज स्टार्ट इज़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। लेकिन अभी आपका जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस अभी कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, ऑब्वियसली जो नया नोड तैयार किया है उसके लिंक पार्ट में स्टोर होना चाहिए।
तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या किया, नोड ऑफ लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में स्टार्ट इज इक्वल टू नोड, मतलब अभी जो आपका नया नोड है वो बनेगा आपका भी फर्स्ट नोड, इसीलिए ये स्टार्ट हमने कहाँ पे असाइन किया, नोड पे असाइन किया। और अगेन काउंट प्लस प्लस और रिटर्न। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इफ और एल्स में आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल स्टेटमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, दैट इज़ नोड ऑफ लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। और ये सिर्फ इसके लिए है ताकि अगर आपका लिंक लिस्ट में पहले से नोड है तो आप उसके लिंक पार्ट में उसके लिंक पार्ट में आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो डालोगे, ताकि आपका नोड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए। अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब अगर लोकेशन 1 नहीं डाली है यूज़र ने, लोकेशन 2, 3, 4 मतलब मिड ऑफ द लिंक लिस्ट की अगर लोकेशन है, तो ऐसे टाइम पे आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने दो जो वेरिएबल है, दो जो नोड है temp1 और temp2, उस दोनों में आपने स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपके जो नोड है वो आपकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, डिज़ायर्ड पोजीशन है, उसके प्रीवियस नोड तक आपको ट्रैवर्स करके जाना है। मतलब सपोज़ अगर आपको थर्ड पोजीशन के ऊपर आपको इंसर्ट करना है नोड को, तो आप सेकंड पोजीशन तक ट्रैवर्स करेंगे। अगर आपको फोर्थ पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है तो आप थर्ड पोजीशन तक ट्रैवर्स करोगे। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है उसके प्रीवियस नोड तक आप जो है वो ट्रैवर्स करेंगे। और इसीलिए हमने यहाँ पे जो कंडीशन ली है वो ली है लोकेशन -1 तक, ठीक है। और ट्रैवर्स करने के लिए सिंपल कोड क्या है आपका, temp1 इज इक्वल टू temp1 ऑफ लिंक। ये जो सिंपल कोड है आपका वो है आपका ट्रैवर्सिंग का कोड। फिर उसके बाद में आपको चेक ये करना है कि जो आपकी temp1 ऑफ लिंक आई है वो नल तो नहीं है। वो अगर नल है तो उस समय आपको करना क्या होगा, उस कंडीशन में आपको करना ये है कि अगर वो लास्ट नोड है, मतलब आप लास्टली इंसर्ट करोगे, और अगर लास्टली इंसर्ट करोगे तो temp1 ऑफ लिंक में आपको नोड का एड्रेस डालना है। मतलब जो अभी न्यूली नोड क्रिएट हुआ है, ये जो नोड क्रिएट हो जाता है वो ऊपर ही हमने नोड क्रिएट किया है, तो उसके लिंक पार्ट में उस नोड का एड्रेस डालेंगे और काउंट प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि नए नोड के लिंक पार्ट में नल हमने ऑलरेडी डाल दिया है। उसके लिए यहाँ पे लास्ट नोड अगर है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, temp1 ऑफ लिंक इज इक्वल टू नोड। और अगर वो लास्ट नोड नहीं है तो फिर आपको ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, जिसमें आप कहाँ तक ट्रैवर्स करोगे, वहीं लोकेशन तक ट्रैवर्स करेंगे जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है वहाँ तक। फिर उसमें आप ट्रैवर्स करने के लिए अगेन वही कोड यूज़ करेंगे, temp इज इक्वल टू temp2 डॉट लिंक। फिर यहाँ पे temp1 ऑफ लिंक में नोड का एड्रेस डालेंगे, जो नया नोड है वो, और फिर उस नोड के लिंक पार्ट में temp2 का एड्रेस डालेंगे, मतलब जो प्रीवियस नोड है वो। फिर अगेन काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और रिटर्न हो जाएंगे वहाँ से। इस तरीके से अगर आपको नोड इंसर्ट करना है, वेदर इट इज़ एट द फर्स्ट पोजिशन, वेदर इट इज़ एट द मिड ऑफ द लिंक लिस्ट, और वेदर इट इज़ एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, आप कहीं पे भी चाहे वहाँ पे नोड को इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में इफ अगर आपको नोड को डिलीट करना है, तो अगर डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले चेक करना है कि स्टार्ट में नल है क्या। अगर स्टार्ट में नल है भाई, तो फिर आपको कोई डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले कर दोगे, लिंक इज एम्प्टी एंड यू रिटर्न फ्रॉम द प्रोग्राम। अदरवाइज वन मोर मैसेज शुड बी डिस्प्ले ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन, एंड दैट इज एंटर द लोकेशन ऑफ अ नोड टू बी डिलीटेड। एंड वो जो लोकेशन है वो LOC नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। अगेन हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, temp1 और temp2 इज ऑफ द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें हमने दोनों में स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया है। अगेन वही सेम कंडीशन जो हमने इंसर्ट में यूज़ की थी, अगर लोकेशन जो है वो काउंट से बड़ा है तो हम लोग इनवैलिड पोजीशन का मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। अगर लोकेशन 1 है तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना है,
और अगर आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो अभी आपका जो स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव था वो अभी सेकंड नोड को इंडिकेट करना है, और सेकंड नोड का एड्रेस आपका कहाँ पे होगा, फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में। इसीलिए स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक करना है और काउंट माइनस माइनस करना है, बिकॉज एक नोड जो है वो उसमें से कम हो गया है। फिर उसके बाद में अगर आपको बीच में का कोई नोड अगर डिलीट करना है या फिर एंड का नोड डिलीट करना है तो उसके लिए आपको वापस से कहाँ तक लूप घुमाना है, लोकेशन -1 तक घुमाना है, मतलब प्रीवियस नोड की लोकेशन तक घुमाना है। और ट्रैवल्स करने के लिए कोड क्या होगा, temp1 इज इक्वल टू temp1 ऑफ लिंक। फिर उसके बाद में आप वो चेक करेंगे कि वो नोड लास्ट है क्या। अगर वो लास्ट नोड है तो फिर temp1 ऑफ लिंक में आप नल डाल देंगे और काउंट माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद में अगर आपका बीच में का ही कोई नोड है, मतलब ना फर्स्ट ना एंड, तो ऐसे में आप सिर्फ लोकेशन तक ट्रैवल्स करेंगे और लोकेशन पर ट्रैवल्स करने के बाद में temp1 ऑफ लिंक इज इक्वल टू temp2 डालेंगे और काउंट माइनस माइनस करेंगे। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इंसर्ट और डिलीट में जो लूपिंग कंडीशन है वो लूपिंग कंडीशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस की जगह पे काउंट माइनस माइनस है, बाकी सब जो है वो सेम है। नाउ we moving forward to the display function. In the display function only two condition is there, if and else. In if condition we need to check that if start is equal to null, means if there is a no node into the linked list, in that case you have to display one message onto the computer screen, and that is there are no element into the list. Otherwise if there is a element into the list, then it definitely executed the else part of the linked list. And for displaying the element, what you do that you are traversing, you should traverse from node to node. That's why first node is assigned to the start, because you have to traverse from the first position. Now from where you have to traverse, जब तक नोड आपका नल नहीं हो जाता है तब तक। और कैसे ट्रैवर्स करेंगे, नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ लिंक। इस तरीके से आप ट्रैवर्स करते जाओगे। और ट्रैवर्स करने के बाद आपको करना क्या है, प्रिंट क्या करोगे आप, ऑब्वियसली इन्फो पार्ट प्रिंट करेंगे। लिंक पार्ट प्रिंट करके तो अपने को कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इन्फो पार्ट आपको प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप इन्फो पार्ट जो है वो प्रिंट करोगे। इस तरीके से इस प्रोग्राम में इंसर्ट, डिस्प्ले एंड डिलीट, ये तीनों कंडीशन जो है आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद में मेन मेथड लेना ज़रूरी है। इस मेन मेथड में आपने, जैसे कि मैंने स्टैक और क्यू के दोनों प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है, एक मेनू हम लेते हैं फॉर यूज़र कन्वीनियंस, जिसमें यूज़र आपकी चॉइस डालता है कि उसको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है या फिर एग्ज़िट करना है। और वो रिपीटेडली एग्ज़िट होने के लिए हम लोग रिपीटेडली मैसेज डिस्प्ले होने के लिए हम लोग एक वाइल लूप लेते हैं, जिसमें यूज़र से चॉइस पूछी जाएगी। वो चॉइस ch नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी एंड वो स्विच केस को पैरामीटर दी जाएंगी, एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस केसेस विल बी द एग्जीक्यूटेड। इन केस 1 इफ यूज़र एंटर्ड द वैल्यू 1 then case 1 is executed. If user entered the value 2 then case 2 is executed. And in case 1 s1 dot insert means insert function हम कॉल करने वाले हैं, एंड केस 2 में s dot delete means delete function कॉल करेंगे। सेम वाइज यहाँ पे अगर यूज़र 3 चॉइस डालता है तो वो डिस्प्ले कॉल करेगा, अदरवाइज एग्जिट कॉल होगा। अगर यूज़र इनमें से कुछ भी नहीं डालता है, 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू अगर यूज़र डालता है तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगी, जिसमें मैसेज प्रिंट होगा रॉन्ग चॉइस। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए हमने कंट्रोल F9 को प्रेस किया है। कंट्रोल F9 करने के बाद में कुछ मेनू आपके सामने डिस्प्ले हुआ है और यूज़र से चॉइस मांगी गई है। अभी अपने इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, और ऐसे केस में अगर हम 3 डालते हैं तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, देयर आर नो एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे अभी 1 डालती हूँ, मुझे अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो पोजीशन पूछेगा। अभी मेरे नोड में मेरे लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, तो फिर मैं अगर 2 पोजीशन डालती हूँ तो वो इनवैलिड पोजीशन देगा, बिकॉज यहाँ पे एक भी नोड नहीं है। फिर ऐसे केस में मुझे चॉइस 1 डालना है, और चॉइस 1 डालने के बाद में आपको पोजीशन भी, लोकेशन भी 1 डालनी है कि फर्स्ट पोजीशन में आपको नोड को इंसर्ट करना है। फिर अगर एटम मैंने डाला 11 तो यहाँ पे 11 एटम इंसर्ट हो जाएगा। अगेन आई प्रेस 1
and now I press 2 for position, and here 2 is the element. Again I press 1 here for insertion, and third is for the position of insertion. Here 13 is the element. Now in my linked list there are 3 elements, 11, 12 and 13. Now I press 3 to show the linked list. Here you can see that 11, 12 and 13 elements are inserted into the linked list. Now I want to delete the element. Suppose I want to delete the element 2 here. If I want to delete 2, देन वो पोजीशन पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन का आपको डिलीट करना है. अब मैं यहाँ पे पोजीशन डालती हूँ सेकंड, मतलब मुझे अभी 12 एलिमेंट डिलीट करना है. अभी वो 12 एलिमेंट डिलीट हो गया है. वो चेक करने के लिए हम लोग वापस 3 डालेंगे. यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि 11 और 13 आप यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे वापस से 1 डालती हूँ और पोजीशन 2 डालती हूँ, मतलब मुझे इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे, और मेरा एलिमेंट है 15. तो यहाँ पे 15 एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है. वो देखने के लिए मैं वापस से 3 नंबर डालूंगी. आप देख सकते हो कि 11, 15 और 13 यहाँ पे एंटर्ड हो चुका है. अगर मैंने वापस से 2 डाला, पोजीशन 1 का डिलीट हो चुका है एलिमेंट. अगेन मैंने 2 डाला, देन उसके बाद में पोजीशन 3 डाला, तो अभी मतलब 11 और 13 दोनों भी, या because after deleting the element 11, third position is not there, only 2 elements into the linked list. That's why it displays the message invalid position. Now I show the linked list element, that is 15 and 13 here. Now again I press 2 and deleted position is 1, means 15 is deleted. Now again I press 2 and again 1, that is now 13 is also deleted. And if I press 3 here, then there are no element into the linked list. In this way आपने देखा कि आप इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले तीनों भी जो ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के, बहुत ही कन्वीनियंटली आप यहाँ पे कर पा रहे हो. अगर यहाँ पे इन तीनों चारों चॉइसेस के अलावा अगर कोई चॉइस डाली है तो रॉन्ग चॉइस का भी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है. इसके साथ साथ में अगर मुझे इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो अभी मुझे 4 नंबर की चॉइस डालनी है. 4 नंबर की चॉइस डालते ही मैं प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन से बाहर होकर प्रोग्राम में आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी 4 नंबर की चॉइस है एग्जिट 0. आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं कि हमने लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट किया, इन्फो पार्ट, लिंक पार्ट कैसे क्रिएट किया, उसके बाद में इंसर्शन कैसे हुआ, डिलीशन कैसे हुआ, डिस्प्ले कैसे हुआ. ये सारे पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे. और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो मैंने मेरा मेल एड्रेस जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो. और मुझे एनी टाइम कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो. अगर कुछ और डिफ़िकल्टी है तो उसको कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो. मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की. ओके, गुड डे, हैव अ ग्रेट डे अहेड.